Well, students, today we will discuss transformer on no load and transformer on load, and its phasor diagrams on no load and phasor diagrams on load. First, we are drawing the phasor diagram on no load. On no load means secondary is open. When voltage is applied to the primary, no load current I0 starts flowing in the primary winding, which magnetizes the core, and flux phi m starts flowing in the core. This flux is alternating and induces EMF E1 and E2 in the primary and secondary windings, and V2 is available at the output. Now we will draw phasor diagrams showing all the quantities. First, we will draw phasor V1. This is V1 phasor. And due to this V1, I1 starts flowing in the primary winding. Now, I will draw I0. You know that in pure inductance, current lags voltage by 90 degree. If it is pure inductance, then current will lag by 90 degree. But this winding has some resistance also, so it will lag by a certain angle called phi 0. Phi 0 is the no load phase angle. Now we have drawn V1, we have drawn I0. Now E1 is induced due to V1. So E1 is in opposition to V1, Lenz's law. So E1 is drawn in opposition to V1. E2 is also induced EMF, it is also on the same line. V2 is slightly less than E2 and it is also on the same line. So E1, E2 and V2 are on the same line. Now this I0 has two components. One component this, one component this. This component is magnetizing component of current, and this component is called energy component of current. So this is I0 sin phi 0, this is I0 cos phi 0. And power input at no load is equal to Vi cos phi. So power input at no load is Vi0 cos phi 0. And power output is 0. So input power is the losses, and this loss is called iron or core loss. So this is the behavior of transformer on no load. Now we will discuss the behavior of transformer on load. First part is we are neglecting R and X at the winding. This winding has resistance and reactance also, but in this case we are neglecting R and X, and next we will take R and X into consideration. First we will draw a phasor diagram neglecting R and X of the winding. Now we are discussing transformer on load. Up to no load, when you apply voltage V1, current I0 starts flowing in this. This magnetizes the no load current magnetizes the core, and primary flux is phi m. Due to this, E1 is induced in primary, E2 in secondary, and V2 is outside. This is up to no load. Now we will study when we connect load on this side, what will happen. When we connect load on secondary, how current is increased in primary. This is a very interesting point. जब हम इधर ही लोड लगाते हैं, मीन्स हीटर इधर लगाया, तो आपका एनर्जी मीटर होता है, तो इधर मीटर तेज घूमता है, जबकि वाइंडिंग में कोई कनेक्शन नहीं है. वाइंडिंग ये अलग है, ये अलग है, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन. तो जब हम इधर हीटर लगाते हैं, तो इधर से मीटर क्यों तेज चलता है, वो आई डिस्कस करना है. अब हम इधर लोड डाल दिया, ये लोड कनेक्ट कर दिया. जब लोड कनेक्ट करेंगे तो इसमें सेकेंडरी करंट चलेगी I2,
जब किसी वाइंडिंग में करंट फ्लो करता है तो आयरन पीस को मैग्नेटाइज करता है। अब ये I2 क्या करेगा, इस कोर को मैग्नेटाइज करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। ये सेकेंडरी का फ्लक्स आ गया, ये पहले प्राइमरी का फ्लक्स था, अब ये सेकेंडरी का फ्लक्स आ गया। दिस फ्लक्स इन ऑपोजिशन टू द मेन फ्लक्स बिकॉज लेंज लॉ EMF ऑलवेज अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग। ये फ्लक्स इसको प्रोड्यूस कर रहा था, इसने अपना फ्लक्स प्रोड्यूस किया जो इसको अपोज करेगा। सो विद द रिजल्ट नेट फ्लक्स इन द कोर इज रिड्यूस्ड। जब नेट फ्लक्स कोर में कम हो जाएगा तो प्राइमरी एक्स्ट्रा करंट फ्लक्स से मेन से ड्रॉ करेगी। जब सेकेंडरी करंट आया, सेकेंडरी ने अपना फ्लक्स प्रोड्यूस किया, दिस फ्लक्स अपोजेस द मेन फ्लक्स एंड फ्लक्स इन द कोर इज रिड्यूस्ड। प्राइमरी ड्रॉ एक्स्ट्रा फ्लक्स करंट फ्रॉम द सप्लाई मेन्स टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी करंट। अब इस करंट को इसने इसके इफेक्ट को खत्म करना है, तो जितना ये सेकेंडरी का फ्लक्स आया उतना ही फ्लक्स इसका प्रोड्यूस करना है। अगर हम इसको मान लें φ2, तो ये आएगा फ्लक्स φ2 डैश। दैट मीन्स φ2 डैश मस्ट बी इक्वल टू 5। मतलब फ्लक्स कैंसिल करना है इनको। अब फ्लक्स कौन प्रोड्यूस करता है, फ्लक्स होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो ये फ्लक्स φ डैश प्राइमरी का फ्लक्स है, φ2 सेकेंडरी का फ्लक्स। सेकेंडरी का फ्लक्स हो जाएगा N2I2, प्राइमरी का फ्लक्स हो जाएगा N1I1 डैश I2 डैश। ये I2 डैश जो है दिस इज एडिशनल करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी फ्लक्स। तो सेकेंडरी फ्लक्स को खत्म करने के लिए ये प्राइमरी एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करेगी I2 डैश। तो टोटल प्राइमरी करंट हो जाएगी I1 इज I0 plus I2 dash. So total primary current will be equal to sum of these two. Total primary current I1 is equal to I0 plus I2 dash. तो ये अब सभी चीजें हमें ड्रॉ करनी है फेजर डायग्राम से। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम I2 dash is equal to N2 upon N1 I2। तो N2 upon N1 कल आपने किया था कंप्लीट, ये होता है K। दैट मीन्स I2 डैश इज इक्वल टू KI। इधर करंट I2 होगी तो इधर करंट की वैल्यू होगी KI2 और टोटल प्राइमरी करंट इज सम ऑफ दिस टू I1 प्लस I2। अब ये सारा चीजें हमें फेजर डायग्राम शो करनी है। जैसे ये फेजर डायग्राम ड्रॉ की है वैसे ये करनी है। तो ये फेजर डायग्राम डिपेंड्स करता है what type of load। लोड तीन टाइप्स के होते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर लोड, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। तो ये तीन डायग्राम हमें ड्रॉ करनी है इसकी। तो फर्स्ट मैं ड्रॉ करना हूँ डायग्राम यूनिटी पावर फैक्टर। ये सभी चीजें जितनी भी है सारे के सारी चीजें फेजर से शो करती हैं। तो जैसे पहले ड्रॉ करें, पहले अप टू नो लोड सेम ड्रॉ करो। अप टू नो लोड V1 I0 E1 V1 V2, ये V2 आ गया। अब I2 कहाँ ड्रा करना है, डिपेंड्स ऑन द लोड। अगर ये यूनिटी पावर फैक्टर लोड है I2 और V2 एक ही लाइन पर होंगे, तो I2 ड्रा करना है। I2 इस लाइन पर आ गया। जब ये I2 आ गया, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ आता है I2 डैश। सो I2 डैश इज इन अपोजिशन टू I2। अगर I2 ये है, इसके अपोजिशन में ये आ गया I2 डैश। एंड दिस इज टोटल प्राइमरी करंट I1 एंड दिस इज इट्स एंगल फाई। तो ये जितनी चीजें सारी सारी आपने फेजर शो कर दी। ये पावर फैक्टर यूनिटी,
नेक्स्ट मैं ड्रा कर रहा हूं पावर फैक्टर लैग। सेम प्रोसेस, दिस इज V1, दिस इज I0, दिस इज phi0, दिस इज E1, V1, V2। पावर फैक्टर लैग यूनिटी था तो करंट इसी के ऊपर थी, लैग है तो करंट पीछे जाएगा, लीड है तो करंट आगे जाएगा, तो लैग में करंट पीछे जाएगा। और इसके बिल्कुल ऑपोजिशन में आएगा I2 डैश, जिसकी वैल्यू है KI2, और इन दोनों का सम जो है वो टोटल प्राइमरी करंट है। दिस इज I1 और ये एंगल phi2 है तो ये भी phi2 होगा, एंड दिस एंगल इज phi1। So this is diagram at power factor lagging, and in leading case this I2 will be leading the V2 by angle phi2, तो I2 अगर इधर ड्रा करना है तो ये आप प्रैक्टिस आपने करनी है, लीडिंग वाला डायग्राम खुद बनाना है। तो ये हो गया यूनिटी पावर फैक्टर, ये हो गया पावर फैक्टर लैगिंग, देन पावर फैक्टर लीडिंग आप खुद बनाएंगे। तो ये डायग्राम मैंने ड्रा की नेग्लेक्टिंग R एंड X ऑफ वाइंडिंग, बट एक्चुअल ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी होता है और रिएक्टेंस भी होता है, तो उसको हम एक्चुअल ट्रांसफार्मर में भी डिस्कस करते हैं। सो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं फेजर डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑन लोड हैविंग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। अब ये वाइंडिंग है, इसके अंदर दोनों चीज होती है, रेजिस्टेंस भी होता है, रिएक्टेंस भी होता है। इस वाइंडिंग में रेजिस्टेंस भी है, रिएक्टेंस भी है। फॉर सिंपलिसिटी आई हैव शोन इट आउटसाइड, ये कनेक्ट नहीं किया है, ये इसी के दोनों चीजें जो बाहर आ गई है, इसी की दोनों चीजें बाहर लाई है, ये कनेक्टेड नहीं है। वाइंडिंग के अंदर ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस भी होता है और रिएक्टेंस भी होता है। अब फिर वही लोड, तीन टाइप्स के लोड हो गए, यूनिटी पावर फैक्टर, पावर फैक्टर लैग, फिर पावर फैक्टर लीड। ये तीन टाइप से लोड हो गए जो यहां कनेक्ट करेंगे। तो अब स्टार्ट करें, स्टार्ट फ्रॉम दिस V1। V1 में से ये दो ड्रॉप माइनस होकर V1 बनेगा, जब E2 है, E2 में से ये दो माइनस होकर V2 आएगा। तो इसका ट्रिक होता है कि हम V2 से स्टार्ट करके V1 तक करते हैं। अब V2 बाहर वोल्टेज आई ट्रांसफार्मर में, तो V2 में ये ड्रॉप ऐड होगा तो यहां पहुंचेगा, ये ड्रॉप ऐड होगा तो यहां, मीन्स V2 में ये दोनों ड्रॉप्स ऐड करके बनेगा E2, और E1 में ये दो ड्रॉप ऐड करके बनेगा V2। तो ये डायग्राम देखो, ये इक्वेशन V2 प्लस I2 R2 प्लस I2 X2 इज इक्वल टू E2, लेकिन ये वेक्टर सम है, अर्थमेटिक सम नहीं है। डॉट मीन्स वेक्टर सम। सिमिलरली E1 प्लस I1 R1 IX1 इज इक्वल टू V1। ये सभी चीजें फेजर से शो करेंगे। तो फर्स्ट डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं यूनिटी पावर फैक्टर। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक है डायग्राम ड्रा करने का, कि V2 से स्टार्ट करना है और V1 तक आना है। इन पीछे डायग्राम मैंने V1 से स्टार्ट किया, यहाँ V2। तो डायग्राम बनाने का ट्रिक है कि आपने ये थोड़ा सा पहले ये डॉटर ले लो, ये V2 को थोड़ा सा टिल्ट करके ले लेंगे, यही ट्रिक है। V2 ये ड्रॉ किया। अब I2 कहां ड्रॉ करेंगे? अगर यूनिटी पावर फैक्टर है, वोल्टेज करंट एक ही लाइन पर होते हैं, तो I2 भी इधर होगा। अब ये IR ड्रॉप पैरेलल टू करंट होता है, IX ड्रॉप परपेंडिकुलर टू करंट होता है। तो IR ड्रॉप पैरेलल टू करंट,
और आई एक्स ड्रॉप परपेंडिकुलर टू करंट, और ये आ जाएगा E2। ये था वोल्टेज ड्रॉप था I2 R2, ये वोल्टेज ड्रॉप I2 X2। तो ये आ गया V में, ये दोनों ऐड करके E बन गए। अब E2 भी इधर है, E1 भी इधर है। फर्स्ट सिंपलिसिटी में E1 को ऊपर ले रहा हूं। ये यहां E1। अब E1 में आपने ये दोनों IR ड्रॉप ऐड करना, IS ड्रॉप ऐड करना, फिर V1 आएगा। तो पहले आपने I1 ड्रॉ करना है। तो I1 जैसे ही ड्रॉ करते थे पहले I0, इसके ऑपोजिशन में I2 डैश, इन दोनों का सम I1। अब I1 ड्रॉप, I1 R जो है पैरेलल टू करंट, और I1 X1 is perpendicular to current। IX parallel to current and IX is perpendicular to current, और ये टोटल इधर है, दिस इज V1। अब इसको बोलते हैं हम बोलेंगे हम I1 Z1 इम्पीडेंस। I2 X2 and this is I1 Z1 I2 Z2। Resistance drop, inductive drop, impedance drop. So this is phasor diagram on load unity power factor UPF। अब एक और बार प्रैक्टिस करो। देन पावर फैक्टर लैगिंग, सो सेम ये भी ट्रिक है। आपने स्टार्ट करना है V2 से। अब पावर फैक्टर लैगिंग मीन्स करंट लैग कर गया, तो करंट लैग कर गया, करंट इधर चला गया थोड़ा पीछे। I2 this is 5। तो IR ड्रॉप पैरेलल टू करंट, अब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, यस। IX ड्रॉप परपेंडिकुलर टू करंट, एंड दिस इज E2। और इसके अपोजिशन में ले लेना है -E1, यहां पहुंच गई। अब I1 ड्रॉ करना है। I1 ड्रॉ करने का वही मेथड है, नो लोड करंट, इस करंट के अपोजिशन में I2 डैश, इसको रिजल्टेंट बनाया, दिस इज I1। तो E1 ड्रॉ किया आपने, जहां E1 फेजर खत्म होगा वहां ये स्टार्ट करना है, जहां ये खत्म होगा वहां ये स्टार्ट करना है। अब E1 यहां गया, इसके आगे ऐड करना IR इज पैरेलल टू करंट, एंड IX इज परपेंडिकुलर टू करंट। और इन दोनों को सम किया, ये आ गया V1, ये आ गया I1 Z1, ये आ गया
I2Z। सो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है ड्रॉ करने की। तो ये ऐसे बुक्स को देखकर ही ड्रॉ होती, बाकी आप उसमें प्रैक्टिस करनी है आपने। ये फ्लक्स का कंपोनेंट आ जाता है, ये फ्लक्स। सो यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। ये भी लीडिंग की बनानी है, ये भी लीडिंग। मैंने दो बनाई है, यूनिटी पावर फैक्टर और पावर फैक्टर लैग। ये डायग्राम जो है दिस इज पावर फैक्टर लैगिंग। लीडिंग का आपने प्रैक्टिस करनी है। ये एंगल्स देख लो, ये V1 और I1 में एंगल आ जाएगा ∅1, और ये दोनों एंगल अपोजिट होते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम फिर हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। ज़्यादा भी है।